Welcome everybody. This is our first video for class 11th and in this video we will start our first chapter, basics of mathematics. And when you arrive from means you when you pass class 10th and you suddenly jumps to class 11, then there is a huge gap between the level of mathematics required to solve physics numericals that you does not possesses in class 10th. So you need to level up before doing physics numerical. You need to get basic understanding of mathematics, that how you will solve those questions whenever you encounter such type of mathematics. This is especially for NEET students because they don't do mathematics as a subject, and for JEE main and JEE advanced students they do mathematics as a subject, so their mathematics gets improved with time. But for NEET students, they did not do that much mathematics. So in this video, or in part in this basic mathematics series for our chapter number 0, why I'm naming it as a 0, because this is not part of your basic syllabus. We are just here to cover it so that when we start doing our numerical problems, and we will be doing numerical problem for JEE main and need previous year questions with every chapter. Whenever we complete that chapter, then you don't encounter that much mathematic problems related to mathematics, not related to concepts. So that's why we have started this series, basic mathematics. And if you like our series, then you can like, share and subscribe. And if you want to support us, then you can scan this QR code and contribute us whatever you can, because these lecture preparations do require some effort, and some financial help will be very appreciated. So first of all, let me explain our video configuration. So we will be doing it for this for both classes, 11th and 12th both. So here 11 will first two digit will denote our class, then there will be a dot or hyphen depending upon whatever YouTube allows. Then there will be chapter number, so this is 00 chapter number. And then there will be video number, so this is 01 video. So this is our 110001 video, and we will be doing whole configuration, all our of videos. Videos title will include this code, so it will be easy for you to decode that what classes we are discussing about which chapter and what video it is for that chapter. So let us move forward. uh, Today's our topic of discussion for this series for chapter 00. We will discussing logarithm, basic trigonometry, integrals, differentiation and graphs. We will cover all of these in basic details. And if whenever we encounter during our problem solving, if some difficult question comes, then we will be solving it right at that time. So most of these things will be covered in basics, and it will be useful for both NEET JEE students also. So let us start with logarithms. Some of my spellings might not be correct, so please bear with me regarding spellings. I'm not that much good in grammatically, so please bear with me regarding spellings. So logarithm में most of the time we discuss base. जब भी हम किसी logarithm की बात करेंगे तो उस logarithm में always हमारे पास एक बेस होता है, और उस बेस के हिसाब से हमारे पास वैल्यू आती है. सपोज अगर आपके पास टू स्क्वेयर टू 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 रेज टू पावर 3 है, तो आपको पता है इसका आंसर होता है 8. तो यहाँ पे जब हमने ये लिखा 2 रेज टू पावर इज 8, तो यहाँ पे जो बेस है वो बेस की वैल्यू 2 है.
जो लॉगरिथम है, जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम की वैल्यू 2 है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो दैट, आप देखिए आप कैसे लिखोगे इसको, 3 इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 वैल्यू 8। मीन्स अगर आप 8 का log लेते हो और उसका बेस 2 रहेगा तो आपको आंसर 3 मिलेगा। और इसी को अगर आप रीअरेंज करोगे तो बेस पे पहले आप बेस लिखोगे, फिर आप उसके ऊपर पावर लेके आओगे, ये वाली वैल्यू लेके आओगे यहाँ पे, और फिर आपको ये फाइनल रिजल्ट इधर मिलेगा 8। नाउ ये सब करने का पर्पस क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो अभी कभी कभी आपको ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पे आपको लॉगरिथम में डील करना पड़ेगा, और आपको मोस्टली 2 टाइप के लॉगरिथम में डील करना पड़ता है। एक तो आपको log बेस e में डील करना पड़ेगा और एक आपको log बेस 10 में डील करना पड़ेगा। जो log बेस e है इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। मीन्स जो नेचर है उसमें मोस्टली, जो भी हमारे फिजिकल साइंसेस हैं उसमें मोस्टली यही रूल फॉलो होता है, जिसमें हम log e को ही फॉलो करते हैं। और जो ये log 10 है इसको नॉर्मली log 10 बेस बोला जाता है। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे आप इन दोनों का ही यूज कर रहे होंगे, या तो आप log बेस e का यूज कर रहे होंगे या log बेस 10 का यूज कर रहे होंगे। अब जब यहाँ पे आपका e है, जो e की वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। मीन्स अगर आपने यहाँ पे लिखा ऐसे दैट if you write like this, a is equal to log e base b, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, दैट e रेज टू पावर a इज इक्वल टू b, और यहाँ पे जो e है उसकी वैल्यू होती है 2.718, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप ऐसे लिखते हो a इज इक्वल टू log 10 बेस b, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दैट 10 रेज टू पावर a इज इक्वल टू b। अभी हम आपको इसको कुछ बेसिक एग्जांपल करके दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप। सपोज आपके पास 100 है और आपको इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। आपके पास जो वैल्यू है वो 100 है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, अगर आप यहां से देखोगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को और इसको आप कंपेयर करते हो, तो यहां से आप बता सकते हो कि जो a की वैल्यू है वो 2 है और b की वैल्यू है 100। तो अब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो दैट 2 इज इक्वल टू log 10 बेस 100, और 100 का लॉगरिथम अगर आप लेते हो 10 बेस पे तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी। मोस्टली आप 10 बेस पे ही कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सपोज ये हम 10,000 के लिए करते हैं, ये हमारे पास 10,000 है, 10,000 को आप लिख सकते हो 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो आप ऐसे लिख पाओगे दैट 10 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो आप अगर फिर से इसको कंपेयर करते हो तो आप इस यहाँ से निकाल सकते हो दैट a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 10,000, और यहाँ पे अगर आप इसको फिर से अब लिखते हो तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू log 10, 4 इज इक्वल टू log 10 10,000। सो यहाँ पे बेस 10,000 हो गया, log की वैल्यू 4 है और जो वैल्यू है वो है 10,000। तो ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो।
अब हम इसके बेसिस पे आपको कुछ जो हमारे इसके लॉग की जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको बताते हैं दैट अगर हमारे पास दो वैल्यूज का लॉग है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की, दैट इज log of AB इज इक्वल टू log of A प्लस log of B। इसका यूज करके दिखाते हैं आपको। और जो मोस्टली हम कर रहे होंगे वो सभी हम log बेस 10 में करेंगे, बिकॉज log बेस E है जो वो रेयरली आपके पास यूज होगा, और अगर यूज भी होगा तो आपको उसके लिए टेबल्स दी जाएंगी सो दैट आप कैलकुलेशन कर सके। और जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सभी वहां पे एप्लीकेबल होंगे। तो सपोज कीजिए हम जो हमारी वैल्यू है 1000, और इसको हम स्प्लिट करते हैं, a इज इक्वल टू 10 रखते हैं और b इज इक्वल टू 100 रखते हैं। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100। तो हमने 10 को a एज्यूम कर लिया और 100 को b एज्यूम कर लिया, सो दैट हम ये स्प्लिटिंग कर पाए फॉर्मूला के हिसाब से। सो log ऑफ 1000 क्या होगा, और ये हम यहाँ पे 10 बेस की बात कर रहे हैं सभी के सभी। वैसे ये फॉर्मूला तो आपका हर जगह वर्क करेगा, ये वाला फॉर्मूला तो आपका कोई भी बेस आप यूज करो सब में वर्क करेगा। जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो 10 बेस के लिए कर रहे हैं। सो जब हम 1000 का 10 बेस निकालेंगे तो हमें पता है जो हमारे पास 1000 होता है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड पावर 3। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3 आएगी, तो इसका log की वैल्यू 3 आएगा। अब अगर हम सेम करें 10 के लिए, log 10 बेस 10 करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 1। तो यहाँ से log की वैल्यू 1 आएगी, जो आपकी पावर होती है वही log की वैल्यू होती है। और अगर हम करें log 10 बेस 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो यहाँ से log की वैल्यू 2 आएगी। और जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग log ऑफ ए बी इज इक्वल टू है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। log ऑफ ए बी यानी 1000 का log था 3, log ऑफ a यानी 10 का log था 1, और log ऑफ b 100 का log था 2। सो 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारी आइडेंटिटी ऐसे वर्क करती। सिमिलरली एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है जिसको हम डिवीजन में यूज करते हैं। जो डिवीजन की आइडेंटिटी है दैट इज log ऑफ a बाय b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। और इसको भी हम आपको ऐसे करके दिखा सकते हैं कि सपोज कीजिए हम 1000 के लिए log कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो 1000 वैल्यू है 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस 10,000 बाय 10। अभी आपको ये लग रहा होगा कि इनका पर्पस क्या है, कि हम ये करना कर ही क्यों रहे हैं। बिकॉज अगर हमको 1000 का log निकालना तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट कभी कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो आएगा कि आपको इस वैल्यू का डायरेक्ट log पता नहीं होगा, बट आपको इन वैल्यूज का log पता होगा। तब उस टाइम पे आपके पास ये आइडेंटिटीज वर्क करती हैं, और ये रिवर्स में भी वर्क करती हैं कि अगर आपके पास a और b इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है तो आप उनको इस वे में राइट डाउन कर सकते हो। सो हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐसे लिख लिया। तो अगर हम अब 1000 का log निकालें तो हम वी ऑलरेडी नो दैट 1000 का log होगा 3, 10,000 का log होगा 4, और 10 का log होगा 1, बिकॉज 10,000 10 रेज़्ड पावर 4 है, 10 10 रेज़्ड पावर 1 है, 1000 10 रेज़्ड पावर 3 है। तो अब आप देख सकते हो 3 इज इक्वल टू log ऑफ a, ये है a, ये है b, सो 4 माइनस 1 3। सो जो आइडेंटिटी है वो ऐसे होल्ड करती है। अब इसका आपको कुछ यूजेस बताते हैं। नाउ यहाँ पे एक और आइडेंटिटी होती है जिसको पावर आइडेंटिटी बोला जाता है, और वो भी हम कवर कर लेते हैं सो दैट ये log का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो सके।
दैट इज log of a n इज इक्वल टू n log a। मीन्स जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी log के केस में। तो सेम हम अपना 1000 वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम निकाल रहे हैं log of 1000, तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है log of 10⁻³ और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपकी पावर है वो आगे आ जाती है, दैट इज 3 log, अभी 10 बचेगा और 10 का log 1 होता है तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें log of 1 लाख निकालना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log of 10⁵, 5 आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा और log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम कुछ और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके लॉगरिथम के बारे में। सपोज कीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें एक्सप्रेशन गिवन है 5⁻³ इज इक्वल टू 125 और इसको आपको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका log की वैल्यू का काम करेगा और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। सो जो हमारे पास फॉर्म होती है दैट a⁻b इज इक्वल टू c है, अगर हमारे पास a⁻b इज इक्वल टू c है, देन यहां से हमारे पास जो b आएगा b इज log a बेस और यहाँ पे c आएगा। सो अगर हम इसको लिखने लगे तो हमारे पास जो 3 है दैट विल बी होगा log 5 बेस 125। मीन्स 5 की आप पावर 3 करोगे तो आपको 125 मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो दैट हमें ये गिवन है log 4 बेस 32 इज इक्वल टू x, हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मींस यहाँ पे बेस 4 है तो 4⁻x इज इक्वल टू 32 आंसर होगा। अब इसको आप थोड़ा इस वे में सोल्व कर सकते हो दैट जो 4 है 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 32। फिर फर्दर आप इसको लिख सकते हो 2⁻2x इज इक्वल टू 32 और आपको पता है 32 क्या होता है, 2⁻2x इज इक्वल टू 2⁻6 एंड यहाँ पे 5 आएगा, 5 2⁻5 32 होता है। तो जब आप इन दोनों को अभी कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो दैट 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2.5। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो लॉगरिथम की वैल्यू निकालने के लिए। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट log of 5 बेस x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से आप कैलकुलेट लिख सकते हो दैट 5⁻1 इज इक्वल टू x माइनस 5। सो 5⁻1 इज इक्वल टू x माइनस 5। सो 5 इज इक्वल टू x माइनस 7, सॉरी ये 7 है एंड x इज इक्वल टू 12। अगर ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखा होता log e बेस x माइनस सपोज 12 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ को आप लिख सकते दैट e स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस
12 एंड ई होता है 2.71, तो 2.71 स्क्वायर x माइनस 12 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 2.71 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस 12, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे हमने जो लोग थे, लोग का थोड़ा हमने बेसिक कवर कर लिया, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ा लोग के साथ जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सके। और जैसे ही क्वेश्चन में इससे डिफरेंट लेवल का लोग आएगा, जब हम नीट और जेई के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो हम वहां पे आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करते चलेंगे। नाउ इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक तो आप ऑलरेडी जो आपकी 10th क्लास है वहां पे आप कवर कर चुके हो, दैट अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आप इसका एंगल ले रहे हो थीटा, और जो आपके यहाँ पे साइड्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन इस केस में अगर ये एंगल थीटा है तो आपका दिस विल बी बेस, दिस विल बी perpendicular and this will be hypotenuse. सिमिलरली अगर आपके पास एक डिफरेंट टाइप की एंगल है, ट्रायंगल है, जिसमें एंगल यहां पे है फाइव, हमने दूसरा एंगल ले लिया यहां पे, और ये दिस इज एम, दिस इज एन एंड दिस इज ओ, तो अगर ये आपका फाइव एंगल है, तो जब भी आपके एंगल को दो साइड टच करते हैं, जो उनमें से सबसे छोटी होगी उसको बेस माना जाता है। जैसे जब थीटा को टच कर रहे थे, थीटा को ए बी साइड टच कर रही थी और ए सी साइड टच कर रही थी, तो ए सी और ए बी में आप देख के बता सकते हो कि ए बी साइज में स्मॉल है तो ए बी बेस होगा। और जब फाइव की आप देख रहे हो तो फाइव को दो साइड टच करती हैं, एक तो एन ओ टच करती है और एक एम ओ टच करती है, बट एम ओ सबसे लंबी है तो ये बेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिस विल बी बेस, this will be hypotenuse, sorry not hypotenuse, perpendicular, this will be perpendicular and जो सबसे longest साइड है वो always hypotenuse रहेगी। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एंगल कहां लेते हो, उस एंगल के बेसिस पे आपके बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। नाउ आपको इसका एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, बिकॉज आपको ये चीज बार बार यूज करनी पड़ेगी आपके, जब भी आप वेक्टर रेजोल्यूशन करोगे तो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा इस थिंग्स को। सो लेट मी डू इट इन ए सेपरेट। सपोज हम यहां पे एंगल लेते हैं, दैट इज एंगल थीटा, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ वी नो कि जो साइन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। हम इस ट्रायंगल की अभी बात कर रहे हैं। सो इस केस में साइन थीटा इज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर इज बीसी, बिकॉज यहाँ पे थीटा बना हुआ है, तो थीटा के जो सबसे थीटा को जो दो साइड टच करती है उनमें जो छोटे वाली है दैट इज ए बी, उसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बीसी बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज AC। सो यहां से आप निकाल सकते हैं दैट BC इज AC साइन थीटा, एंड सिमिलरली जब आप कोस थीटा के लिए वैल्यू राइट डाउन करोगे
cos थीटा विल बी बेस यानी AB बाय AC। सो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट AB इज AC cos थीटा। मीन्स जो आपका बेस कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑलवेज कोस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा आता है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वहां पे आपका साइन थीटा आता है। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल को चेंज कर दूं, थीटा को यहाँ पे ले जाऊं, अगर हमारा एंगल यहाँ की जगह यहाँ पे बन रहा है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो हमारे साइन थीटा एंड कोट थीटा है वो चेंज हो जाएंगे लाइक दिस। अब हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है फाई और हम अलग से न्यूमेरिकल ले लेते हैं MNO। तो इस केस में अगर आप साइन ऑफ फाई निकालोगे, साइन फाई होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा बिकॉज जहाँ पे एंगल बनता है वहां पे आपको देखना है कि एंगल किन दो साइड के बीच में बन रहा है। उनमें जो छोटी साइड है वो बेस है, तो यहाँ पे ON बेस का काम करेगा ना कि परपेंडिकुलर का। पहले यहाँ पे CB परपेंडिकुलर का काम कर रहा था बिकॉज एंगल यहाँ पे बन रहा था, अब एंगल यहाँ पे है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा MN एंड बेस होगा MO। सो MN is equal to MO साइन फाई। सो ये वाली साइड अब आपकी साइन वाली कंपोनेंट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप कोस फाई निकालते हो, कोस फाई विल बी अब की बार आपका बेस ON हो जाएगा, ON बाय OM। सो ON इज इक्वल टू OM या MO कोस फाई। मीन्स ये वाला कंपोनेंट आपका कोस फाई हो जाएगा। तो अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये होता है दैट आपको बहुत सा टाइम मिलेगा कि आपको वेक्टर रिजोल्व करना होगा। सपोज कीजिए आपको एक ऐसा रैंप मिलेगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके पास एक ऐसा रैंप होगा और रैंप के ऊपर एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होगा लाइक दिस। तो जब आप इसके लिए कैलकुलेशन करोगे और इसका मास आप देखोगे तो मास हमेशा सेंटर में एक्ट करता है। ये सब हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। और ये वाला एंगल आपको गिवन होगा दैट इज थीटा। तो जो इसका ये कंपोनेंट है, लेट मी यूज एरोस, तो मास उसका ऐसे एक्ट करेगा, बट आपको सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है। मींस आपको कंपोनेंट चाहिए होगा, आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये एंगल भी थीटा है। दिस इज योर mg, इसका ये मास एक्ट करेगा। तो जहां भी वेक्टर बनता है इस केस में आपको फिर से क्या लगानी पड़ेगी, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी और इसको आप ऐसे बना सकते हो। लेट मी शो यू। अब आप क्या करोगे, आपके पास ट्रायंगल की दो साइड आ गई, अब जस्ट आपको ट्रायंगल की एक थर्ड साइड चाहिए। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इस वैल्यू को यहां पे मीट करेगी। और अब आप इसको नेमिंग दे सकते हो दैट O A और ये सपोज B है और ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। सो जो आपकी यहाँ पे OB है, OB किसका काम करेगी, हाइपोटेनियस का। जो O है वो बेस का काम करेगी और जो AB है वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। सो अगर आप हमारा प्रीवियस वाला जो हमने एनालिसिस किया है वो यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे एंगल थीटा होता है, जिस साइड पे एंगल थीटा बनता है और जो बेस साइड है वो कोस थीटा होती है मेन साइड का। तो अगर आपका हाइपोटेनियस mg है तो जो आपका ये बेस है दैट इज OA, इसकी वैल्यू हो जाएगी
mg cos थीटा, और जो आपका ये परपेंडिकुलर है दैट विल बी mg sin थीटा। तो ऐसे आप इस वेक्टर को रिजोल्व करोगे, और ये तो हो गया इसका हमारा बेसिक रेजोल्यूशन। जब आप इसको एक्चुअल रिजोल्व करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो हम आपको शो कर देते हैं कि कैसा आएगा। सो ये हमने फिर से वो एज इट इज ले लिया। ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो मास था वो आपका इस पॉइंट से ऐसे नीचे की तरफ लग रहा था। तो इसके जो दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, पहला होगा आपका mg cos थीटा, तो जो आपका mg cos थीटा वो ऐसे जाएगा, और जो आपको mg sin थीटा मिल रहा होगा वो कंपोनेंट आपका ऐसे जा रहा होगा। सो इन नेट ये आपका mg होगा, ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो एंगल्स को रिजोल्व करने के लिए, प्रोवाइडेड ये एंगल थीटा है और यहाँ पे भी ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकली आप आइडेंटिटी यूज करके प्रूव कर सकते हो कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है। बिकॉज अगर ये थीटा है, सो जो यहाँ पे ये एंगल होगा दिस इज 90 माइनस थीटा, और फिर आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको ये डिपेंड्स कि आप एंगल कहाँ पे बना रहे हो, तो उससे जो आपके कंपोनेंट्स बनेंगे दैट इज कोस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट्स आपके बनेंगे, और उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करोगे वो हमने जस्ट अभी आपको शो किया। सो दैट्स वाई कि कहाँ पे एंगल बन रहा है मीन्स आप एंगल यहाँ पे बना रहे हो तो उसके हिसाब से कोस और साइन कंपोनेंट अलग बनेंगे, और अगर आप एंगल यहाँ पे बना रहे हो तो उसके हिसाब से कोस और साइन कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। सो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन एंड एंगल आप साइन और कोस कंपोनेंट्स को चूज करोगे जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। इसके बाद आपको कुछ बेसिक ट्रांसलेशंस करने पड़ते हैं, कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं साइन थीटा और कोस थीटा में एक दूसरे के साथ, बिकॉज कुछ आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके 10th क्लास में, सच लाइक जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप कवर कर चुके हो। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। उसके अलावा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आप कवर कर चुके हो। तो आइडेंटिटीज तो आप याद रख सकते हो, हमारा अभी पर्पस है आपको ट्रांसलेशन दिखाना कि आप कैसे ट्रांसलेट करोगे एंगल्स को एक दूसरे के बीच में। तो ये आपने ऑलरेडी कवर किया होगा कि सपोज कीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट रीजन बोल सकते हो आप इसको, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इसमें आपको ये याद रखना है, अब ये आप शायद कवर कर भी चुके होंगे, दैट यहाँ पे रूल होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी से मतलब हम किन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, और इसमें हम मोस्टली दो ही डिस्कस करते हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा, बिकॉज बाकी के सभी हैं वो आप साइन कोस से ही
बना सकते हो। जैसे टेंजेंट थीटा क्या होता है, जो थर्ड एक डिस्कस किया जाता है, दैट इज साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हम मोस्टली ये दो या एक मैक्सिमम ये टेंजेंट थीटा ही डिस्कस करेंगे, और बाकी की चीजें आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी के सभी साइन कोस टेंजेंट पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होगा। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे ओनली टेंजेंट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे हम कोस को पॉजिटिव कर देते हैं, और यहाँ पे हम टेंजेंट को पॉजिटिव कर देते हैं। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में जब टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है एक्चुअली यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव होता है। साइन बाय कोस नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, और टेंजेंट एट लास्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आता है, वो करने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको एक बेसिक सी ट्रायंगल्स बनानी होंगी। अगर आप कुछ ट्रायंगल्स बनाते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हो, तो इस सिनेरियो में आपकी ट्रायंगल ऐसे बनेगी। वेट अ मिनट, लेट मी फ्लिप इट। तो इस सिनेरियो में आपकी ट्रायंगल ऐसे बनती है। जब इस ट्रायंगल से आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्थ में आपको ओनली कोस पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड के केस में जो आपकी ट्रायंगल है वो आपको थर्ड के केस में आपको ऐसी ट्रायंगल मिलती है। फर्स्ट के केस में आपको ऐसे वाली ट्रायंगल मिलती है, और सेकंड के केस में आपको ऐसे वाली ट्रायंगल मिलती है। अब आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो कि हाइपोटेनियस तो सब में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज हाइपोटेनियस क्या आता है, स्केयर ऑफ सम होता है। तो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर आप फर्स्ट में देखते हो तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेकंड में ओनली y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा बनाते हो तो आपका बेस नेगेटिव रहेगा, हाइपोटेनियस। आप ये यहाँ पे एंगल्स होंगे, ये थीटा, ये थीटा, और ये थीटा। तो यहाँ पे बेस नेगेटिव रहेगा, तो बेस से कोस नेगेटिव हो जाएगा, साइन नहीं होगा। अगर आप इस साइड में देखते हो तो यहाँ पे ये साइड भी नेगेटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है, तो आपका साइन और कोस दोनों नेगेटिव हो गए साइड में। और यहाँ पे देखते हो आप तो यहाँ पे बेस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कोसाइन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेसिक रिलेशन है कि कैसे आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। और इसके लिए एक शॉर्टकट रूल भी होता है। शॉर्टकट रूल से आप ऐसे याद रख सकते हो कि सपोज कीजिए ये आपके ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, या ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, और इनमें आप ऐसे याद रख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ। सो आफ्टर स्कूल टू आप कहाँ पे जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। अभी इसका यूज क्या है, ये सभी आपको करने का मतलब क्या है, आप ये सभी स्टडी क्यों करें। तो इसका स्टडी करने का पर्पस होता है बिकॉज आपको जब आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको एंगल्स को कन्वर्ट करना होगा। साइन से आपको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कभी कभी, और कोस से आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो हमने ये वाला बताया ये सिर्फ जेई वालों के लिए यूजफुल है। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना यूजफुल नहीं है, बिकॉज उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव है। जो जेई वाले हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे जो पॉजिटिव है पॉजिटिव क्यों है। और कभी कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको एंगल्स निकालने होंगे, थीटा निकालना होगा, और वहां पे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी साइड पॉजिटिव या नेगेटिव है आपको एंगल की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी, वो हम उसी टाइम पे कवर करेंगे। सो
अभी हम कन्वर्जन की बात करते हैं जिसके लिए हमने ये सब स्टडी किया। तो हमारे पास दो टाइप के कन्वर्जन आएंगे। पहला कन्वर्जन होगा 90 प्लस 90 माइनस 270 माइनस और 270 प्लस। जो ये वाला कन्वर्जन है इसमें क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। साइन थीटा से आप कोस थीटा में चले जाओगे और कोस थीटा से साइन थीटा में चले जाओगे। दूसरा हमारे पास कन्वर्जन है दैट विल बी 180 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस एंड 360 प्लस। ये हमारा सेकंड कन्वर्जन है एंगल्स का। और इसमें क्या होगा, साइन थीटा से आप साइन थीटा में ही रहोगे और कोस थीटा से आप कोस थीटा में ही रहोगे। नाउ अभी आप ये बोलोगे कि सर फिर इसमें ये कहाँ से यूज हुआ, कि हमने ये कहाँ से यूज किया जब हमने ये कन्वर्जन किया। तो जब भी आपके पास 90 माइनस या 90 प्लस आएगा तो आपको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है। जस्ट आपको जो साइन होगा यहाँ पे कि ये कोस थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो साइन आपका यहाँ से डिसाइड होगा। सिमिलरली जब भी आप 180 माइनस से 180 प्लस जा रहे होगे या 360 माइनस प्लस जा रहे होगे, तब आपको एज इट इज रखना है। बट जो आपका साइन डिसाइड होगा, साइन आपका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से या इस हमारे जो ये 4 पोर्शंस हैं उससे हमारा साइन डिसाइड होता है। और ये साइन अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डिसाइड होता है, कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर आप 90 प्लस माइनस कर रहे हो तो साइन से कोस में कन्वर्ट होगा, कोस से साइन में कन्वर्ट होगा। और 180 प्लस माइनस कर रहे हो तो साइन टू साइन ही कोस टू कोस ही रहेगा। 180 में कोई कन्वर्जन नहीं होता, 90 में कन्वर्ट हो जाता है। 90 में साइन कोस में चला जाता है और कोस साइन में चला जाता है। सो लेट अस पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम आपको शो कर सके कि कैसे यूज करना है। सो लेट अस कुछ टेस्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। सो सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज साइन 90 प्लस थीटा। तो हमें ये पता है कि जैसे ही आपका 90 प्लस या आ रहा है, 90 माइनस आ रहा है, तो साइन से आप कोस में जाओगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा। बस जस्ट आपको अभी साइन देखना है। तो आपको ये देखना है कि जब साइन 90 प्लस होगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो आपको पता है कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट है इसमें 0 से 90 एंगल कवर होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 टू 180 कवर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90 होता है, सेकंड 90 टू 180 कवर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 कवर करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 कवर करता है। तो आपको ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा जब भी आपके पास आएगा वो कोस थीटा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें साइन 90 माइनस थीटा, तो अगेन 90 आ रहा है तो कन्वर्जन करना है आपको, तो ये कोस थीटा होगा। अब आपको देखना है साइन अगर 90 माइनस वाले क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा। 90 माइनस वाला मतलब पहला क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा ही रहेगा। अब हम सिमिलरली कोस के लिए करते हैं, कोस 90 प्लस थीटा। अब आपको पता है कि 90 आ रहा है तो फिर से आपको कन्वर्जन करना है, तो कोस 90 प्लस थीटा कन्वर्ट होकर साइन थीटा में जाएगा। जस्ट आपको साइन देखना है कि कोस 90 प्लस होने पे क्या हो जाता है। अगर आप 90 प्लस जाते हो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव साइन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, तो ये नेगेटिव साइन थीटा होगा। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो ये फिर से साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 90 थीटा पे कन्वर्जन करना है आपको। और जो कोस 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो इस टाइम पे साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। अभी हम 180 का कन्वर्जन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है साइन 180 प्लस थीटा। अब हमने बताया था कि 180 में आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना, तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज रहेगा।
अब जस्ट आपको ये चेक करना है कि 180 प्लस थीटा होने पे साइन का साइन क्या रहता है। तो 180 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे ओनली टेंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन और कोसाइन दोनों नेगेटिव होते हैं। तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन को कंटिन्यू करेगा। अगर हम साइन 180 माइनस थीटा करें तो इस सिनेरियो में अगेन ये साइन ही रहेगा, बट 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा, आप थीटा को 1 ले लीजिए तो ये 179 आ जाएगा। तो 179 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम कोस के लिए करें तो कोस 180 माइनस थीटा, तो अगेन कोस थीटा ही रहेगा बिकॉज 180 पे नो कन्वर्जन, और माइनस थीटा मींस 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है तो कोस नेगेटिव माइनस कोस थीटा। एंड कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, अगर आप ये देखते हो तो 180 प्लस थीटा में अगर आप जाते हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से कोस नेगेटिव ही होता है। तो दिस गिव्स अस माइनस कोस थीटा। तो सिमिलर कन्वर्जन आप 270 और 360 के लिए भी कर सकते हो, सेम रूल यहाँ पे वैलिड होगा। और आप इस हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनका यूज करके ये कन्वर्जन्स कर सकते हो। बिकॉज कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज कीजिए आपको कोस ऑफ 120 फाइंड आउट करना है। अब आपको कोस ऑफ 120 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस ऑफ 90 प्लस 30। अब आपको पता है कि कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा यानी कि साइन 30। अब जस्ट आपको वैल्यू चेक करनी है कि कोस अब किस क्वाड्रेंट में चला गया, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। एंड माइनस साइन 30, साइन 30 होता है हाफ। अगर आप ऐसे ही आपको साइन सपोज कीजिए 135 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 क्या देगा आपको, कोस 45 देगा। और आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, और कोस 45 होगा 1/√2। इसको आप एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, लाइक दिस, कि 135 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज साइन 180 माइनस 45। तो आपको पता है कि जब आप 180 वाला करते हो तो कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो ये साइन 45 ही आएगा। अब 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, एंड साइन 45 इज अगेन 1/√2। तो ऐसे आप किसी भी मेथड का यूज करके कन्वर्जन कर सकते हो, और ये आपके लिए यूजफुल होगा जब आप एक्चुअल में अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तब आपके पास ऐसे एंगल्स की वैल्यू आप एनकाउंटर करोगे, और उस केस में आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके, इन मेथड्स का यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो विद दिस हम आज की जो हमारी वीडियो है इसको एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने लोगरिथम के बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ा और हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक्स कवर किया। इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे फ्यूचर में आने वाले जब आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और कैसे वहां पे आप कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं हमने वो भी देखा, कि आप कैसे साइन और कोसाइन के कंपोनेंट्स को जब भी आपके पास कोई फोर्स गिवन होगा उससे आप साइन और कोसाइन के कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी का इसके जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो में शो किया गया कंटेंट पसंद आया हो, आपको मीनिंगफुल लगा हो, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ पॉसिबल, ये हमारा ऊपर बारकोड शो हो रहा है, QR कोड शो हो रहा है, इसको स्कैन करके हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम बुक्स वगैरह परचेज कर पाते हैं, और जितना हमारे पास मटेरियल होगा उतना ही हम आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो विद दिस हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।
and keep subscribing. Thanks for watching.